यस फ्रेंड्स, तो अब हम जो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट है जे आई टी का मतलब है जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम क्या चीज है? मतलब देखिए, मैं आपको बताता हूं। जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमें रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। और जब हम रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, अपने स्टोर से रॉ मटेरियल मंगा लेते हैं। अब सोचो, ऐसा सिस्टम हो कि हमें ये पता हो कि भाई इतना प्रोडक्शन करना है, और जैसे ही हमारे पास ऑर्डर कंफर्म हो, मतलब सेल ऑर्डर कंफर्म हो, वैसे ही हम सिस्टम से मेल भेजें अपने रॉ मटेरियल सप्लायर को कि भाई इतना इतना मटेरियल भेज दो। प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू होने से पहले उसका मटेरियल आ जाए। इसका मतलब क्या है? वी डोंट रिक्वायर टू ब्लॉक आवर फंड्स इन दी stock. We don't require to maintain store. We don't require to maintain storekeeper. We don't require to maintain MIS on stores. ठीक है? कहने का मतलब यह है कि हमारे को स्टोर की रखने की जरूरत है। जब हमें माल बेचना है या माल तैयार करना है तभी हमारे पास रॉ मटेरियल आ जाए। ठीक है? तो जस्ट इन टाइम अप्रोच क्या है? देखिए, जस्ट इन टाइम अप्रोच, मैं भी पहले स्टडी पढ़ा रहा हूं, फिर अपने कॉन्सेप्ट बताऊंगा। A just-in-time approach is a collection of ideas that streamline a company's production process activity to such an extent that wastage of all kind, time, material, labor, is systematically driven out of the process. Driven out का मतलब है खत्म कर दिया जाए। ठीक है? A JIT comprises a number of sub-components. A complete JIT begins with the production, include deliveries to a customer production facilities, continue through the manufacturing plant, and even include the types of transaction process in the accounting system. ठीक है? तो ये इसकी पूरी थ्योरी है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट ये होगा कि हमारे जो कॉस्ट हैं वो रिड्यूस होंगे। A characteristic of JIT is in eliminating all waste from system. This can be a waste of assets, excessive inventory. It can also be a waste of time. ठीक है? Key focus on JIT system, important कर ले। A key focus of any JIT system is on reducing various kind of wastage, so that the entire production process is concentrated on time spent actually producing process. हम बातचीत करने में नहीं है, जो प्रोडक्शन है उसमें जो टाइम लग रहा है उस पर फोकस करें। Another way in which waste is eliminated is to charge cost driver to wasteful activity that accumulated cost. Impact JIT का ओवरहेड पर क्या होगा, अदर कॉस्ट पे क्या होगा, प्रोडक्शन प्राइस पे क्या होगा, ये सब लिखा है। परफॉर्मेंस मेजर इन JIT, देखिए, many of the performance measurement measures used under traditional accounting system not useful in JIT, while new measures can be implemented that take advantage of the unique characteristic of the system. क्या? One of the key measurement in a traditional system is machine utilization. This is used to ensure that every assets a company purchase is being thoroughly utilized. ये सारे इसके मेजरमेंट दिए हुए हैं। Installation of JIT does not mean that there should be a complete elimination of variance or operational measures. अगर आप सोचें कि ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो ऐसा नहीं है। ये एक कॉन्सेप्ट है, ये कई बार पूछा है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। बैक फ्लशिंग इन JIT सिस्टम, पढ़ेंगे इसको। Traditional accounting system record the flow of inventory through elaborated accounting procedures. Such systems are required in those manufacturing environment where inventory values are large. However, since JIT operate in modern manufacturing environment characteristic by low inventory and WIP values, usually
also associated with low cost variance, the requirement of such accounting procedure does not exist. ठीक है. So back plussing requires no entry of any kind until a finished goods is completed. Underline करें इसे. At that time, the total amount finished goods is entered into computer system, which multiply it all by component listed in the bill of material for each item produced. This yield a lengthy list of components that should have been used in the production process, and this is subtracted from the opening stock at the closing stock to arrive at the closing inventory. Okay. There are some problems and back flushing which must be corrected before it will work properly. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बैक फ्लशिंग एंड इनकी प्रॉब्लम्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई हैं. जैसे देखें, प्रोडक्शन रिपोर्टिंग. द प्रोडक्शन फिगर्स एंटर्ड इन द सिस्टम मस्ट बी एब्सोल्युटली करेक्ट, else the wrong component types and quality will be subtracted from the stocks. Scrap reporting, लॉट ट्रेसिंग, इन्वेंट्री एक्यूरेसी. डाटा बिल्कुल एक्यूरेट होना जरूरी है. ये क्वेश्चन आया है रिसेंटली, नवंबर 13 में आया है. ये देखिए क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जेआईटी इन प्रोडक्शन प्रोसेस, डिस्टिंग्विश द इंपैक्ट ऑफ जेआईटी ऑन ओवरहेड्स. और ये देखिए, ये मेरा क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा था, व्हाट इज बैक फ्लशिंग इन जेआईटी, स्टेट द प्रॉब्लम दैट मस्ट बी. तो बैक फ्लशिंग requires no entry of any kind until finished goods is completed. और ये इनकी प्रॉब्लम्स है जो आती है. 4 नंबर का मटेरियल है, इसलिए 4 नंबर में जितना लिखना है वो मैंने बता दिया आपको. डिस्क्राइब द जेआईटी इन टाइम सिस्टम. ओके, जेआईटी सिस्टम, सॉरी. Explain how the implementation of JIT approach to manufacturing can be major source of competitive advantage. और ये प्रैक्टिकल आ गए हैं. तो प्रैक्टिकल से पहले मैं थोड़ा सा कुछ लिखाना चाहूंगा, वो आप लिख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. ठीक है. ये थ्योरी थी बुक में जो लिखी रहती है स्टैंडर्ड, बट आपको पता है स्टैंडर्ड को हमें अपनी भाषा में समझना जरूरी है, तभी हमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होता है. तो पढ़ लेते हैं. अब हम जो पढ़ रहे हैं उस कॉन्सेप्ट का नाम है जेआईटी. ठीक है, देखें क्या है. जैसे टीक्यूएम है ऐसे ही जेआईटी है. जेआईटी सिस्टम advise that material required for production should be received at the factory premises as and when required. As and when required मतलब जेआईटी नो इन्वेंट्री, all time should be used for producing the product. मैक्सिमम टाइम आपका यूज होना चाहिए प्रोडक्ट को बनाने में. ठीक है. सो फॉर जेआईटी पर्पस we should have agreement to supply the requisite का मतलब होता है जो मटेरियल चाहिए
with proper quality and quantity at scheduled time with the suppliers। सप्लायर से हमारा इस बात को लेके हमारा एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। आगे पढ़ेंगे। अब ये सब क्यों कर रहे हैं हम लोग, देखिए, इन परफेक्ट competitive market, in perfect competitive market, it is not possible to increase the selling price. It is not easy to increase the selling price. Hence, we should focus to reduce our cost or to remove our wasteful cost, that is storage cost, waste, scrap, idle time, etc। ठीक है, ओके। आगे लिखें, इन JIT इंस्पेक्शन, अब क्या होता है समझ लीजिए। अगर हमें JIT में मटेरियल लेना है तो वो तो सीधा वहां से चल के हमारे यहाँ ही आएगा फैक्ट्री में, और रखने की जरूरत नहीं है। काउंट आउट कौन करेगा? तो जो इंस्पेक्शन है, इंस्पेक्शन एक्टिविटीज शुड बी carried out at the supplier premises. Our supervisor will visit supplier premises and इंस्पेक्ट करता है द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड देन ट्रांसफर करता है द मटेरियल टू आवर फैक्ट्री इन लॉक्ड कंटेनर। कंटेनर लॉक्ड कंटेनर में वो हमारी फैक्ट्री को भेज देता है, सो दैट वी कैन डायरेक्टली ट्रांसफर द मटेरियल टू production and hence no need to store the material at our premises। हमारी premises में उसको रखने की हमें कोई जरूरत नहीं है।
ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे। सो जेआईटी सिस्टम में स्टोरेज कॉस्ट, वेस्ट, स्क्रैप, इनको हम रिड्यूस करते हैं। चलिए अब एक कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान से समझिएगा, स्टॉक आउट कॉस्ट। स्टॉक आउट कॉस्ट का मतलब क्या है? कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई आपके पास मटेरियल तो है नहीं और इमरजेंसी ऑर्डर आ जाए। तो जब इमरजेंसी ऑर्डर आएगा तो आप क्या करोगे? इमीडिएटली या तो खरीद के लाओगे या फिर वो ऑर्डर छोड़ोगे। तो जो एक्स्ट्रा पैसा आप इनकर करोगे फॉर परचेजिंग द मटेरियल, और जो आपका कंट्रीब्यूशन लॉस होगा ड्यू टू नॉट एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, ये क्या कहलाएगी? आपकी स्टॉक आउट कॉस्ट है, क्योंकि स्टॉक था नहीं। ठीक है, स्टॉक आउट कॉस्ट मीन्स द बेनिफिट टू बी लूज on urgent order which cannot be fulfilled due to non-availability of raw material or fulfilled with extra cost। ठीक है, सो बेनिफिट और लॉस ऑफ जेआईटी सिस्टम क्या होगा? देखिए, स्टोरेज कॉस्ट क्या होगी सर? ये डिक्रीज होगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट ये इंक्रीज होगी। क्यों? नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ेंगे ना। परचेज कॉस्ट ये इंक्रीज होगी। और स्टॉक आउट कॉस्ट भी क्या होगी? ये भी इंक्रीज होगी। अब आप कहोगे सर परचेज कॉस्ट क्यों इंक्रीज होगी? अरे भाई, जब अगर आप इमरजेंसी में ऑर्डर मंगा रहे हो, एक दिन में डिलीवरी चाहते हो, तो क्या सप्लायर आपके लिए रख के रखेगा कि नहीं रखेगा? तो वो कुछ पैसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेगा? बिल्कुल चार्ज करेगा। चलिए, इसकी कुछ प्रॉब्लम्स है, वो अभी मैं थोड़ी देर में आपको कराता हूँ। ठीक है, थैंक यू।